अस्सलाम एवरीवन। आज कौन प्रेजेंट करेगा केस? अस्सलाम वालेकुम मैम, आज मैंने प्रेजेंट करना है। कौन? अपना नाम बताइए। जी मैम, डॉक्टर मरियम फ्रॉम शालामार हॉस्पिटल। ठीक है जी, मरियम शुरू करें। जी मैम, मैम हिस्ट्री है। मैम सब फर्टिलिटी है और फाइब्राइड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की है। ठीक है। मैम मिसेस सना, वाइफ ऑफ उस्मान, 24 years, with no formal education, housewife, resident of Shadra, Lahore. She is married for 15 years. First non-cousin Janus मैरिड marriage of फॉर हाउ मेनी इयर्स? 15 years. 15 years. Yes. And she is 24 years old. Hello. जी मैम, 20 है मैम, उसने अपनी एज गलत फिर बताई होगी। She is जी 24 years old and she is married for 15 years. मैम, बट वो थोड़ी 30 के अराउंड लग रही थी। अच्छा चलो ठीक है। 30 and it was the first non-cousin Janus marriage of both partner. She is para 1 with one miscarriage, previous one normal vaginal delivery, with last child born 11 in a year back and last miscarriage 3 year back, with the last menstrual period 28 January 2021, admitted to the outpatient department of the Jinnah Hospital, Lahore on 15 Feb 2021. आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलें बेटा। The complaint of irregular, मैम अब ठीक आ रही है? जी With जी, the अब ठीक आ रही है। complaint of irregular heavy vaginal bleeding with no specific pattern for 6 months, हम्म mass in abdomen for 6 months, हम्म and she was in usual state of health 6 months back, and previously her menstrual cycle was 4 by 5 28 days regular with the 2 to 3 pads soaked per day, but patient हम्म noticed a change in her menstrual cycle 6 months back, and menstrual cycle become irregular with no specific pattern. She used to bleed for 10 to 15 days after 8 to 10 days of bleeding free interval, with 7 to 8 pads soaked per day with the passage of clothes. She has no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual bleeding, postcoital bleeding now and previously. She had feeling of mass in lower abdomen 6 months back, which is gradual in onset and associated with the lower abdominal pain, dull in nature, gradual in onset, mild in intensity, relieved by taking rest, with no radiation and aggravating factor. And pain is not associated with urinary urgency, frequency, retention, and no painful defecation, constipation, and diarrhea. She has no history of indigestion and swelling of leg, बेटा ऊंचा varicose बोले, लगता है आपका माइक थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है जी। swelling of feet, leg, and varicose vein and hemorrhoids. She has no history of vaginal discharge, fever with cough, and anorexia and weight load. She has no history of easy bruisability, bleeding from mouth, nose, gum, and contraception in the form of IUCD or hormones, drug intake, heat and cold intolerance, palpitation, weight gain, acne, and hirsutism. She has history of weakness, easy fatigability, and shortness of breath on climbing stair, but no chest pain, shortness of breath on lying down. Her diet is adequate with the dietary intake, daily intake of egg, fruit, meat. She consulted in private clinic 3 months back and her scan done and told about abdominal mass. Certain blood tests done and told about the low HB level and 3 blood transfused there 3 months back with no reaction and no parenteral iron given. No tonics advised. It's first non-cousin Janus marriage of both partners living together. Coital frequency 2 to 3 times per week with no dyspareunia and coital difficulty. Husband is 30 years old, work in a factory. He is non-smoker, no history of hypertension, diabetes, bumps and inguinal and testicular surgery, trauma. Husband's semen analysis was never done. Patient scan for follicular activity and tubal patency was never carried out. No workup done for subfertility. Now patient is admitted here for the workup and evaluation of mass and her scan done and told about abdominal mass and certain blood tests carried out and told about low HB level. But further plan of management is not discussed with patient. And regarding obstetrical history, her first pregnancy was spontaneous, booked after, with the spontaneous vaginal delivery at term in private hospital 11 year back.
with a healthy alive male baby of average size, and baby was breastfeed vaccinated with no antepartum, intrapartum and postpartum complication. Her Hmm. second pregnancy was also spontaneous, and it was 3 year back, but it was first trimester complete miscarriage, and pregnancy was confirmed by urine pregnancy test, and it was not followed by any DNC. And contraception never practiced, cervical smear never taken. She has no history of hypertension, diabetes, and TB, asthma, and no history of any surgery in the past. She has no family history of hypertension, diabetes, ischemic heart disease, and carcinoma of the uterus, ovary, breast, and colorectal. She has a normal sleep bowel habit. She is not Hmm. smoker and Hmm. have no drug allergy. She Hmm. lives in self-owned house and basic necessity of life are met with ease. Hmm. 30 years lady, well oriented in time, place, and person, sitting comfortably on couch with blood pressure 110 by 80, pulse 88, temperature 98 Fahrenheit, respiratory rate 16 breath per minute, height 5 feet 2 inches, weight 65 kg. पल्स रेट इसका कितना बताया? Um, Ma'am, 16 breath per minute. पल्स रेट 88 per 80, minute. ठीक है जी, आगे चलें. She is pale, with no clubbing, cyanosis, and jaundice. Thyroid is not enlarged. Orodental hygiene satisfactory. All accessible lymph node not palpable. No sacral or pedal edema seen. And both breast and areola normal looking, with no lump palpable in all four quadrants of breast. First and second heart sound audible with no added sound. On auscultation, normal vesicular breathing, bilateral with no added sound. A protuberant abdomen moving with respiration, with no visible pulsation, stria, scar mark, and normal umbilicus. No tenderness on superficial and deep palpation. A mass is felt of 18-week size, occupying in the hypogastric region, firm in consistency, regular margin, smooth surface, not tender, mobile, lower limit not reachable, Hmm. and no viscomegaly appreciated, and uterus Hmm. is mobile, not felt separated from the above described mass. Hmm. जी मैम बस जी. मैम ठीक है, इसको समराइज करें. Ma'am, 30 years, para Hmm. 1 with one Hmm. miscarriage, last child Hmm. born 11 years, last abortion 3 years back, with irregular heavy vaginal bleeding, with no specific pattern and filling of Hmm. mass abdomen for Hmm. 6 months. She is pale, 18-week size mass in hypogastrium with regular margin, smooth Hmm. surface, firm in consistency, not tender, mobile, lower limit not reachable, and on biomarker examination, uterus not well separated from the mass. Hmm. तो इसमें what will be your differential diagnosis based on your history and examination? Ma'am, it could be Um, fibroid. there is one question. There is one question that why have you not you mentioned pelvic examination and the speculum examination? Oh, जी मैम मैम किया था वो आई सॉरी मैम परस्पेक्युलम एग्जामिनेशन में वल्वा नॉर्मल लुकिंग था एंड Hmm. परस्पेक्युलम Because एग्जामिनेशन this सर्विस this examination जो आपने मुझे बताया that is just abdominal examination. yes ma'am I done but I missed ma'am cervix speculum is on speculum exam वल्वा normal looking and हाँ. the cervix was also हाँ. normal looking and cervical हाँ. smear taken. हाँ. हाँ. ठीक है. Cervical, you took the cervical smear. Yes ma'am. Or what was the amount of bleeding at this time, at the time of examination? Was she bleeding or not? Ma'am, no, ma'am. She was Hmm. not bleeding at that time. ठीक है. What about your pelvic examination findings? Ma'am, during pelvic examination, uterus was not felt well separated Hmm. from the mass, and the Hmm. mass was firm, 18-week Hmm. size, and Hmm. with smooth surface, regular margin, not Hmm. tender, and Hmm. it was mobile. Hmm. चलें अब इसको जरा समराइज करें. Ma'am, 30 years, Hmm. para 1 with one Hmm. miscarriage, last Hmm. child born Hmm. 11-year back, last abortion 3 years with irregular heavy vaginal bleeding,
with Hmm. no specific pattern and feeling Hmm. of mass abdomen for 6 Hmm. months. She is pale. So what is your diagnosis based on Ma'am, history and examination? ma'am, fibroid uterus Hmm. and How sure you are about this diagnosis? ma'am, a second differential ovarian tumor, but it is less likely, more likely it is fibroid uterus, ma'am, because history and examination suggest fibroid uterus. She is Hmm. in reproductive age, and her Hmm. history is having the history of the heavy menstrual bleeding, Hmm. and on examination, the mass is firm Hmm. and Hmm. firm, mobile, Hmm. and smooth surface, regular margin. No limit is not reachable, and Hmm. it is not well separated from the uterus. So your diagnosis will be just one, and that is fibroid uterus. Ji. While you are doing the abdominal examination, do you think your examination is complete? Abdominal examination. मैम विस्रोमेगाली में मैम नो विस्रोमेगाली and Hmm. ma'am percussion में ma'am percussion note was dull on the Hmm. mass and Hmm. there shifting dullness आपने was not percussion note का मेंशन नहीं किया था. जी ma'am percussion note was dull on the mass and shifting dullness was not present. You did not perform. You did not test it for the shifting dullness. No ma'am I checked You checked. but Why? yes Why you checked ma'am for the shifting dullness? ma'am because in the gynae patients ma'am when there is a mass abdomen we usually do the percussion note to check Hmm. for the ascites or any although it is Hmm. less likely because we are suspecting Hmm. the fibroid uterus but Hmm. second differential could be ovarian tumor but it Hmm. is less likely in this patient. Hmm. Hmm. So, what was the finding of your testing shifting dullness in this patient? Because you said that percussion note is dull on the mass. Yes ma'am In and presence of this dull on percussion mass, how precisely you can comment on the shifting dullness? ma'am because it was resonant in the flank so ma'am shifting Hmm. dullness That ma'am means because that that means means ma'am what? ma'am, there is no fluid in the flanks and नो the एस्थेटिक फ्लूइड. ठीक है. no cytic fluid. चलिए अब आगे चलते हैं. अब now as to say that the diagnosis in this patient is fibroid uterus. And the other problem in this case is secondary subfertility. Yes, He ma'am. is having this problem for the last 6 months, according to the patient's history. Yes, ma'am. Has she been tested for infertility and has she received any treatment for that? No, ma'am. She didn't receive any treatment, and ma'am, You took the history about this or not? yes, ma'am. I asked the patient, and because Hmm. her first child born was 11 year back, and her Hmm. second miscarriage was 3 year back, but Hmm. she told me that she never took any medicine, she never consulted any doctor, and Hmm. Hmm. she never, no investigation was carried out. No, her husband's semen analysis, tubal patency test was never carried out, and her second miscarriage 3 years before was also that pregnancy was also spontaneous without any treatment. Hmm. So basically, her main problem is heavy menstrual and heavy irregular menstrual bleeding. And but what are her concerns about the subfertility? Ma'am, in her Though जो currently है she has other problems, लेकिन उसके concern तो आपने पूछे होंगे. yes, ma'am. I asked. She said she came here because of the heavy menstrual bleeding and blood Hmm. loss, but she also wants to conceive. Ma'am, उसके concern she wants conception also. Although her primary uh, need didn't come for this, but she also wants conception. में हमें जरा स्टॉप करना पड़ेगा फॉर फ्यू मिनट्स क्योंकि उसको चेंज करना है जरा इस सिस्टम को. Mhm.
जी जी शुरू कीजिए। जी मरियम। I asked the patient. She consulted for the heavy menstrual bleeding, but she wants conception also. But she, ओके ओके, ma'am, अब इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मुझे आपने बताया था, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बनता है? आपने कहा कि इट्स टोटली इरेगुलर, बट इफ शी ब्लीड्स फॉर 15 days and at an interval of 8 ma'am, to 10 days, डेज नहीं तो मैम, ये 10 to 15 डेज। 10 कभी कहती है मैम 10 डेज की ब्लीडिंग होती है, कभी 15 डेज तक भी रहती है। और हम्म, इंटरवल जो है कभी 7 दिन गुजर जाते हैं, कभी 10 डेज फ्री गुजर जाते हैं। तो वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, कभी 8 डेज, कभी 10 to 12 डेज उसके फ्री होते हैं। और ब्लीडिंग भी मैम कभी 10 डेज तक रहती है, कभी 15-16 डेज तक भी रहती है। so based on the history, what type of fibroid she might be having? इन्वेस्टिगेशन से पहले या कोई भी और टेस्ट कराने से पहले आपकी क्या assumption है इस केस में कि इसमें what type of fibroid she could have? मैम मैम सब म्यूकोजल फाइब्राइड हो सकते हैं, इंट्राम्यूरल विद इंट्राम्यूरल मल्टीपल फाइब्राइड्स। ओके, अब आप इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे? हाउ यू विल प्रोसीड ऑन इसकी फर्दर एवेल्युएशन के लिए? मैम फर्दर एवैल्यूएशन के लिए मैम फर्स्ट ऑफ ऑल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर, complete blood count with the HB level gram per deciliter, platelet count। इन टेस्टों की रिपोर्ट भी जरा बताते जाएं, इनकी कितनी हीमोग्लोबिन थी? मैम इनकी जो मैम 4 Feb की हुई थी, हीमोग्लोबिन लेवल 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर थी। और मैम इंडिसेस इनके MCV 75 था, MCH 29, MCHC जो थी 32 थी। और मैम ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव था, प्लेटलेट 150 पर क्यूबिक मिलीमीटर थे, शुगर रैंडम 98 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी, हेपेटाइटिस B and C वाज नॉन रेक्टिव। ठीक है, चलें आगे। और इनमें क्या क्या टेस्ट करवाएंगे? abdominal pelvic scan for the मैम site size and location of the mass and the size of uterus। मैम उसमें जो abdominal pelvic scan था, बल्कि 8 weeks uterus था, posterior wall myoma था, 8 into 7 centimeter, pushing the endometrium anteriorly। मैम ठीक है, बस फिलहाल यही इन्वेस्टिगेशन मैम हुई थी। आप एंड इसमें एब्डोमिनल साथ क्यों मांग रहे हैं? मैम पेल्विक इसलिए अल्ट्रासाउंड की तो ठीक है, उसमें आपने टाइप साइज और वो सारा लोकेशन उसकी पता करनी है, बट व्हाई यू आर आस्किंग फॉर द एब्डोमिनल स्कैन इन दिस पेशेंट? मैम बिकॉज मैम इसमें मैम यूट्रस का साइज मैम एक तो 18 वीक है, तो एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन मैम 18 5। वीक्स है। जी मैम। तो और मैम दूसरा KUB, किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर का स्टेटस भी देखने के लिए। व्हाई? मैम बिकॉज टू सी द प्रेशर इफेक्ट ऑफ द मास ऑन द यूरेटर एंड ब्लैडर। तो उस पे क्या कमेंट था मैम अल्ट्रासाउंड पे? उसमें नहीं था कमेंट, KUB पे कमेंट नहीं था। ठीक है, अब ये 8 into 8 सेंटीमीटर पोस्टीरियर वॉल सिंगल फाइब्रोइड, इज इट सो? यस मैम। विद द बल्कि यूट्रस, यस मैम। और यूट्रस आप बता रहे हो कि 18 वीक साइज है, ये कोरिलेट करते हैं? मैम मैम मे बी क्योंकि मैम यूट्रस का साइज तो इनलार्ज है अकॉर्डिंग टू दिस। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कुड बी मल्टीपल फाइब्राइड, बट मैम स्कैन में एक ही फाइब्राइड था, 8 ट्रीटमेंट। नो मैम वो दे वर प्लानिंग टू रिपीट द स्कैन because it was scanned and outside the hospital in a clinic, and she was advised to repeat the scan in the hospital. If she would be having a single fibroid as on ultrasound and according to your clinical examination uterus was uniformly enlarged with the regular contours, Yes ma'am। तो इसमें सिंगल फाइब्रोइड आपको अलग से फील नहीं हुआ इसमें? No ma'am, अलहदा से मैम सिंगल फाइब्राइड was तो not ये found। आपकी किस फाइंडिंग को रीइंफोर्स करता है? यानी अगर आपको आइसोलेटेड एक फाइब्रोइड फील नहीं हुआ ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन एंड यू से दैट इट्स यूनिफॉर्मली एनलार्ज्ड, Yes ma'am। ये किस किस्म का फाइब्रोइड है जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसमें हो सकता है? दो इस पे अल्ट्रासाउंड पे तो पता चल जाता है कि इसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है।
Ma'am, it could be due to the multiple fibroids, ma'am, because not single. मल्टीपल फाइब्रोइड हो तो उसमें तो Yes, यूट्रस के रेगुलर कॉन्टोर्स का होना थोड़ा मुश्किल होता है. ma'am. It could be Ma'am, either submucosal or intramural. जी मैम दोनों हो सकते हैं मैम, सब म्यूकोजल ये और दोनों हो इंट्राम्यूरल, सकते हैं. जिसकी वजह से जिस अगर आप उसमें फीको क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाओ तो इसमें आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि ये किस किस्म का फाइब्रोइड है जहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली एंड लार्ज यूट्रस लगती है. एंड ऑन अल्ट्रासाउंड यू फाइंड जस्ट अ सिंगल फाइब्रोइड, और इवन अगर 2-3 भी हों लेकिन आपको उसमें यूनिफॉर्मिटी उसके जो स्ट्रक्चर की है, उसके कॉन्टूर्स की है, उससे फिर भी आपको अंदाजा हो सकता है अबाउट द पॉसिबल लोकेशन ऑफ दैट फाइब्रोइड. चलिए आगे चलते हैं. इसमें और कुछ टेस्ट करवाने की जरूरत yes है? ma'am, yes ma'am, although it was not done, but one needs semen analysis Yes, and good semen FSH, analysis. ma'am, FSH, LH, Because we fi- should not forget the second issue of her history जो कि सब fertility है. yes ma'am. चाहे उसने उसको मेंशन ना किया हो एंड चाहे वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, बट एट ऑल टाइम्स वी हैव टू एड्रेस दैट इशू एज वेल. Yes इसमें इसके इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे. सो हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, व्हाट एल्स? ma'am, follicular stimulating hormone, LH, TSH, serum वो क्यों prolactin, कराओगे और टीएसएच क्यों ma'am, कराओगे? because patient is having irregular cycle, But तो this is irregular frequent cycle and this is attributed to her problem of the fibroid. फाइब्रोइड है उसकी वजह से उसका इरेगुलर हैवी साइकिल है, तो फिर उसमें एफएसएच कराने की क्या जस्टिफिकेशन है? ma'am, because these are the baseline investigation for subfertility, and ma'am, we want to rule out an ovulation also. But if you find a cause of that irregular cycle, still you will need FSH. Ma'am, we may consider it as a baseline investigation because patient is Baseline for what? in subfertility. Hmm. Ma'am, Any because other opinion about FSH? क्योंकि इस पेशेंट में सबम्यूकोजल और इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड की वजह से इरेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है. yes तो ma'am. इसमें इसकी वैलिडिटी एफएसएच की क्या है? इज देयर अ गुड ऑल्टरनेटिव? और फिर एफएसएच को आप टाइम कैसे करोगे? उसकी क्रेडिबिलिटी पे उस पे भी तो डिपेंड करता है ना कि आप उसको प्रॉपर टाइम से डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकिल में डिफरेंट उसकी इंटरप्रिटेशन होती है एफएसएच की. मैम एफएसएच के अलावा एएमएच की भी ऑप्शन है. AMH ज़्यादा रिलायबल है स्पेशली इन द केसेस विद इरेगुलर साइकिल, लेकिन स्टिल you can be asked about the justification for doing ovarian reserve test in this case, who is 30 years old patient and 6 months back she was having regular cycle. ऐसा ही है ना? यस मैम बिल्कुल. तो उसमें 6 महीने पहले उसका साइकिल रेगुलर था, देन ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ फाइब्रोइड शी वाज हैविंग इरेगुलर साइकिल. तो उसमें उसकी जो AMH या ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग है उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो आपको बतानी पड़ेगी कि इसमें हम क्यों करवाएंगे ओवेरियन रिजर्व. व्हाट आर योर असम्पशंस? आपका हाइपोथेसिस इसमें क्या है? आप क्यों इसमें करवाना चाहते हो? मैम बेसिकली तो एफएसएच, एलएच, टीएसएच, सीरम प्रोलैक्टिन ही हम रूटीनली करवाते हैं पेशेंट के जो देयर इज सबफर्टिलिटी के नथिंग पेशेंट लाइक होते हैं. रूटीन. एक चीज बेटा आप याद रखो, जी रूटीन मैम. कोई भी चीज नहीं होती है. मैम रूटीन वो बेस चीज होती है विच इज एप्लीकेबल टू 100% ऑफ द पेशेंट. हम 100% ऑफ द पेशेंट में ये तो नहीं करवाते. सो द टेस्ट्स हैव टू बी इंडिविजुअलाइज्ड. और सीरम प्रोलैक्टिन आप क्यों करवाओगे इसमें और टीएसएच क्यों करवाओगे आप इसमें? मैम एन ओवुलेशन के लिए मैम बिकॉज 10% केसेस और बिकॉज पेशेंट हैज सबफर्टिलिटी फॉर 3 years एंड 10% केसेस ऑफ थायराइड कुड बी सब क्लिनिकल. So and could be cause of infertility. So I want to rule out the thyroid disorders. अब ये वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एरिया है डिस्कशन का, जिसमें बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग इसमें करवाते हैं, कुछ नहीं भी करवाते. बिकॉज जो नहीं करवाते उनमें उनकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट हैविंग एनी साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरायडिज्म
वाई टू गो फॉर इट। लेकिन इनका, मरियम का कहना ये ठीक है कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में भी, बिकॉज फॉर एडिक्वेट ओवुलेशन सीरम टीएसएच लेवल्स का एक एडिक्वेट लेवल पे होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट जनरली स्पीकिंग शुड बी एट अराउंड 2.5 to 3। जैसा कि हम प्रेगनेंसी में एंटीनेटल पीरियड में ये समझते हैं कि इसमें टीएसएच लेवल शुड नॉट go beyond 2.5 for an adequate pregnancy outcome, and so is with the ovulation and the follicular maturation and even for the implantation. So in subclinical hypothyroidism, these all three functions, reproductive functions, can be disturbed. तो इसमें इसलिए आपको इसमें ये देखना पड़ता है कि ओवेरियन रिजर्व आपने ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग क्यों करानी है और आपने टीएसएच क्यों करवाना है। तो ये टीएसएच की आप जस्टिफिकेशन इस तरह से दे सकते हो कि हाइपोथायराइडिज्म जो है वो इसमें एक है कि नॉर्मल सीरम टीएसएच 4.4 है, दैट इज द अपर नॉर्मल लिमिट। लेकिन अपर नॉर्मल लिमिट तो एफएसएच की 20 तक होती है, लेकिन फॉर एडिक्वेट फॉलिकुलर मैचुरेशन अगर 20 तक एफएसएच जाएगा तो ओवेरियन रिजर्व पोर की तरफ हम चले जाते हैं, दो नॉट एब्सोल्युटली एब्सेंट। इसी तरह से फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ओवरी एफएसएच शुड बी अराउंड 4, 5, 6, अगरचे उसकी अपर लिमिट 20 तक है। सो इज विद द TSH, thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone should not touch the upper normal limit for adequate follicular maturation. तो इसलिए उसका एक लेवल पे होना जरूरी है, और TSH लेवल जो हैं वो फॉर प्रॉपर ओवुलेशन, फॉर follicle maturation, फॉर इवन इम्प्लांटेशन इसका 2.5 और 2.3 होना जरूरी है। और सब क्लिनिकल तो हम तब कहते हैं जब सीरम टीएसएच लेवल इज बिलो 10 और उसमें कोई साइन सिम्टम्स ना हो, तो ये सब क्लिनिकल कहलाता है। सो यू कैन इमेजिन के अगर सीरम टीएसएच 7 या 8 या 9 है, स्टिल इट इज सब क्लिनिकल, बट इट कैन ग्रॉसली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन एंड फॉलिकुलर मैचुरेशन। तो इस वजह से इसमें हम टीएसएच की करवाने की जस्टिफिकेशन आप ये दे सकते हैं, और इस टीएसएच लेवल पे पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं होता। So this stands true especially for the cases of unexplained infertility. Unexplained infertility के केसेस में इसकी वैलिडिटी और भी बढ़ जाती है जब आपको और कोई वजह नहीं मिलती, तो इसलिए इसमें अगर आप करवा लोगे तो ज्यादा बेहतर है। सो और हमें फिर क्या करवाने की जरूरत पड़ेगी? जी मरियम, फाइब्रॉइड विद इनफर्टिलिटी टेस्ट हमें इसमें चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि वी हैव टू कवर द होल ऑफ द केस। मैम इसके अलावा मैम इसकी ट्यूबल पेटेंसी चेक होनी चाहिए। ट्यूबल पेटेंसी हम इसको अभी करेंगे क्या टेस्ट? क्योंकि वी आर फर्दर प्लानिंग इज सर्जरी, तो इंट्राऑपरेटिवली भी कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त करने में प्रॉब्लम्स हैं। इसमें करने में ये प्रॉब्लम है कि एज द पेशेंट इज हैविंग लार्ज साइज यूट्रस, तो उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं। दूसरी चीज ये कि ये चीज तो आप इंट्राऑपरेटिवली भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये प्री ऑपरेटिव ट्यूबल टेस्टिंग आप वहां पे करते हो जहां पे आपने ये देखना होता है कि क्या ये इनफर्टिलिटी फाइब्रॉइड की वजह से है। लेकिन इस केस में तो हमने सर्जरी करनी ही करनी है अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, दिस फाइब्रॉइड इज सिम्टोमेटिक, और वो हमने निकालना ही निकालना है। तो इस वजह से इसमें चूंकि हमने सर्जरी करनी है, तो इस वजह से हम इसको ड्यूरिंग सर्जरी टेस्ट कर सकते हैं। चलें जी आगे चलें। अब इसको आप मैनेज कैसे करोगे? सो नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस केस। Ma'am, first of all, I will consult the patient about her diagnosis that she is having a benign condition. मैम आफ्टर सर्जरी ट्यूबल पेटेंसी देख सकते हैं? आफ्टर सर्जरी भी देख सकते हैं। 3 months आफ्टर द सर्जरी आप हिस्टोसल्पिंगोग्राफी करवा लो तो उसमें बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि आपने सर्जरी की, उसके नतीजे में एडहेजन्स बन गई, लेकिन एक बेस लाइन सिचुएशन हमें पता होती है, आपने पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी होती है।
तो पेशेंट की काउंसलिंग में ये सब चीजें आ जाती हैं। चलें जी आगे अच्छा चलें मैनेजमेंट। or ma'am, first of all, I will counsel the Ma'am, patient during that she is surgery, having a fibroid. Ma'am, fibroid uterus, which is a benign condition, and it is it is the cause of heavy menstrual bleeding, and it could be cause of her subfertility. And before I will also इट counsel कुड for बी the द need for कॉज ऑफ the सब फर्टिलिटी, ये आप इतने could or यकीन could से not कैसे be, कर ma'am. Ma'am, could or could not be the cause. पॉसिबली भी। Possibility of the subfertility, and after and need I will counsel about her the need for the surgery, and explain the intraoperative and complication of the surgery, inform consent, and optimize her general health anemia. In then will after arranging the optimizing her anemia, arrange I will preparation, anesthesia, evolution, and arrange the blood, and then inform consent and proceed for the surgery in the form of myomectomy. अच्छा, ये आप सर्जरी प्लान कब करोगे? एंड हाउ यू विल ट्रीट हर अनीमिया? हर हीमोग्लोबिन इज 6.7। Ma'am, because patient is symptomatic, she is having easy fatigability, shortness of breath. I will transfuse blood, and she is having a heavy menstrual bleeding in frequent cycle. नो, आई एम Frequent cycle. आस्किंग यू अ सिंपल Ma'am, क्वेश्चन दैट हर हीमोग्लोबिन इज ma'am, I 7.2। will transfuse her blood. हाउ Will मेनी give her, ब्लड? ma'am, because it is almost 7. I will give 3 pint of blood. 2 सी to 3. पॉइंट नहीं बेटा, कहते हैं यूनिट्स कहते हैं। पॉइंट और यूनिट के जो है ना उसके मेजरमेंट में फर्क होता है। Okay, you will transfuse 3 units of blood. What is your target hemoglobin to be achieved in this case before surgery? Ma'am, it should be should be 11 gram per deciliter. Or ma'am, 3 blood, or ma'am, तो 3 ब्लड से इसकी हो जाएगी क्या? ma'am, it is 7. It is after 3 blood transfusion, ma'am, 10 हो जाएगी उसकी. और मैम 3 ब्लड के उसके बाद बाद तो शायद मुश्किल से 10 हो। मैम उसके पेरेंट्रल आयरन की भी दे सकते हैं मैम। पेरेंटल आयरन 1 को to 2 कितना टाइम लगेगा? मैंने पहला सवाल यही पूछा था कि इसकी करोगे कब? इसकी मैम। आपने जो डिसाइड किया है सर्जरी, मैम एक तो इसको आपने उसका थोड़ा टाइम बताना है पेशेंट को, ठीक है? जी मैम फिर 2 दूसरी वीक्स चीज ये कि तक आपने हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज करना है। जी मैम, बिकॉज शी इज नॉट ब्लीडिंग एट दिस टाइम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैम उसकी सिम्टम्स को, उसकी हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करूंगी मैम। Is it important to know her last menstrual period? यस मैम। When she had her last menstrual period? मैम 28 जनवरी। 28 January. So now today her next menstrual cycle is expected. ऐसा ही है ना? Ma'am, she bleed almost 15 day in the last cycle. Ma'am 28 से मैम 13 14 तक bleed की थी, अब 15 को आई थी, तो patient was saying कि she just freed 1 to 2 days back. हाँ, ठीक है. So when Ma'am, her 8 to next 10 period days. is expected? So when her Ma'am, next period is expected? Ma'am, after 10 to 12 days she bleed, ma'am. So what will be the optimum time for her myomectomy? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप इसकी मायोमेक्टमी के लिए कौन सा टाइम ज्यादा सूटेबल है, नाउ और आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड? Ma'am, it should be done before the next period, because again period start, she will bleed heavily and more blood loss. So ideally should be done before the Yes, it can be done now because she has just finished with her bleeding just now. ऐसा ही है ना, कुछ दिन पहले ही इसकी खत्म हुई है। Yes ma'am. ठीक है? जी जी। And as she bleed heavily in every cycle, so you have to decide it earlier. आप इसको बहुत लंबा लटका नहीं सकते क्योंकि इसकी already her hemoglobin is 7.5 and she had received 3 transfusions 3 months back. ठीक है? Yes ma'am. And now you have to plan it again. तो आपने इसको ब्लड लगा दिया, आपने इसका डिसाइड करना है। अब इसमें जो इंट्रा ऑपरेटिव आपके प्रोसीजरल स्टेप्स क्या होंगे?
Ma'am, first of all, during I will give the after anesthesia induction, I will give her antibiotic, Hmm. aseptic techniques, EUA, confirm my finding, then will do the incision on the abdomen, and Hmm. कौन सा इंसिजन देते हैं, then पेनिसिलिन या मिडलाइन? ma'am, Fenestril I will give the Fenis because it is 18 week size and हम्म, less than 20 we can give the do the mammectomy with the Fenestril ठीक है, and after ठीक है। Fenestril I will हम्म, uh, inspect the uterus, both ovaries, and the ठीक है। fibroid, its हम्म, location, height, हम्म, size, and then I will give the incision over the fibroid most prominent part of the fibroid. Longitudinal, I will give the longitudinal incision on the most prominent part of the fibroid until I हम्म। reach the vein between the fibroid and the capsule. Then I will remove the fibroid with the enucleation. द फाइब्रोइड इज पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लोकेशन है फाइब्रोइड की। यस मैम, अगर पोस्टीरियर मैम एक्सटरसाइज करके यूट्रस को मैम पोस्टीरियर इncision अब रीजस पे रिमूव इसमें करूंगी। देखिए, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड दो, बल्कि आपने प्लान भी किया हुआ था कि इसकी आपने ट्यूबल पेटेंसी भी चेक करनी है। इसमें ब्लड लॉस भी एक्सपेक्टेड है ज्यादा बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसका मतलब है कि उसकी फाइब्रोइड वेस्कुलरिटी ज्यादा है। तो इसमें ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो कि आप एंटिसिपेट कर रहे थे इस केस में, and you have also decided to test a tubal patency intraoperatively. So what you have done for that purpose? Ma'am, before starting the surgery, we can put the cervical catheter So or go systematically and methodically कि आपने जो चीज अपने प्लान में रखी हुई है उसके मुताबिक आपने, ठीक है, इंट्रा सर्वाइकल कैथेटर आपने डाल दिया। फिर यस मैम, और मैम उसके बाद पोस्टीरियर यूट्रस को एक्सटरसाइज करके पोस्टीरियर वॉल जो मायोमा है मैम पोस्टीरियर इncision देंगे ऑन द फाइब्राइड एंड इट विल आई विल रिमूव द फाइब्राइड बाय द enucleation and then close the dead patient space. starts heavy bleeding during that enucleation process. मैम आपने देन उसकी उसकी प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स आपने पहले से क्या किए हुए? बोनिस मैम बोनी क्लैम्प्स के लिए और वेजोप्रेसिन अगर हैवी इंट्राऑपरेटिव पेशेंट ब्लीड करे तो मैम तो वो तो आपने वेजोप्रेसिन वी ऐसा कैन कुछ भी गिव मेंशन नहीं किया। आपने तो ऐसा और कुछ मेंशन नहीं किया। इसमें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेशेंट ब्लीड करेगी। ब्लीड यस So मैम what you have done for a prophylactic minimizing the blood loss during this मैम surgery? बोनी क्लैम्प्स अप्लाई And करेंगे what एट द is that लेवल ऑफ Bonnie's clamp? Is it इंटेस्टाइन मैम available एट everywhere? Bonnie's clamp क्या है? मैम टॉर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं पोस्टीरियर टॉर्निकेट फाइब्रोइड इसका जिस जगह पे है वहां पे बोनीस क्लैंप लगाना मुश्किल आपको लगता है, तो फिर क्या करोगे? मैम वेजोप्रेसिन Suppose की भी it's ऑप्शन situated quite low in the posterior wall of the uterus, where there it is not practically feasible to apply the Bonnie's clamp. Then what you will do? मैम यूट्राइन आर्टरी पे के लेवल पे इंटरनल ओस के लेवल पे यूट्राइन आर्टरी पे मैं मैम वही तो टॉर्निकेट बता रही अप्लाई हूँ ना इंटर कि वहां पे लगाना मुश्किल है क्योंकि उस जगह पे मैम फाइब्रोइड। वेजोप्रेसिन भी दे सकते हैं पेशेंट को क्या ब्लड चीज? लॉस कम करने के लिए हम्म, वेजोप्रेसिन मैम वेजोप्रेसिन ठीक है, वो आप देते हो रूटीन में? मैम रूटीनली में देते तो नहीं है यूज अगर लगाना हो वेजोप्रेसिन तो कैसे लगाया जाता है? ये प्रैक्टिकली एक है वो उसको रेस्ट करने के लिए ये लगाया जाता है, लेकिन कैसे लगाते हैं और फाइब्रोइड में किस जगह पे लगाएंगे? ऑल अराउंड द फाइब्रोइड या किसी खास जगह पे? एंड मैम शुड इट इसके बी गिवन एज सच विदाउट डाइल्यूशन और डाइल्यूट करके लगाते हैं? मैम डाइल्यूट करके लगाते हैं 20 ml ठीक है, और और कहाँ पे डाइल्यूशन में लगाते हैं? लगाते हैं और मैम जस्ट बिलो द फाइब्राइड इन बिलो मैम द एग्जैक्ट फाइब्रोइड। मैम अच्छा चलो, वेस्कुलरिटी पे ठीक है। वेसल्स की वासोकंस्ट्रिक्शन पे यूजुअली बेस ऑफ द फाइब्रोइड जो होता है जहाँ पे ज्यादा वेस्कुलरिटी या उसके जो वेस्कुलर पेडिकल्स होते हैं वहां पे हो, वहां पे मकसद ये होता है कि उसके वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया जाए जो उसकी फीडिंग वेसल्स हैं। ठीक है, और क्या आप इसमें कर और सकते हैं? और मैम ब्लड इन हैंड रखेंगे और अगर पेशेंट ब्लीड हैविली मैम ब्लड इंट्राऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर वो सकते तो हैं है ही पेशेंट है, इतना ब्लीड करवा के तो ब्लड तो लगेगा ही, लेकिन हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज।
ओके, इंसिजन आप किससे देते हो? मैम स्कैल्पल नाइफ से। अच्छा, कैन यू यूज कॉटरी फॉर दैट? आपको अंदाजा है जब स्कैल्पल से हम इंसिजन देते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा प्रोफ्यूज हेमरेज स्टार्ट होता है। सो समटाइम्स यू कैन यूज कोएगुलेशन कॉटरी फॉर गिविंग इंसिजन। ठीक है, यस मैम। तो इसमें बाकी जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं वैसे डिस्कस करने की, लेकिन इसमें आपको सिर्फ ये चीजें मोटी मोटी ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर ये फाइब्रॉइड यूट्रस को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा, यूट्रस की डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि उसकी जो लेटरल एनाटमी है वो डिस्टॉर्ट ना हो रही हो, क्योंकि अगर लेटरल एनाटमी डिस्टॉर्ट हो रही है, सपोज दिस फाइब्रॉइड इज लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर it's not only compromising the uterine anatomy, but it's extending onto the broad ligament, lateral surfaces पे, lateral walls पे भी जा रहा हूँ, तो फिर then comes the issue of ureters और ये सब चीजें। तो उसके हिसाब से भी आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस सूरत में आपने क्या करना है, एंड यू मस्ट नो द कोर्स ऑफ यूरेटर। इस तरह के केसेस में जैसे ग्रेड 4 एंडोमेट्रोसिस है या 18 वीक का या 18 वीक से ज्यादा का जो मैस, एब्डोमिनल मैस है विच इज एनक्रोचिंग ऑन टू द लेटरल पेल्विक फॉल्स, वहां पे यूरेटर्स की सेफ्टी, सर्जिकल सेफ्टी बहुत जरूरी हो जाती है और सर्जिकल एनाटमी बहुत जरूरी हो जाती है। So as an obstetrician and gynecologist, you must be aware about the course of ureters के उसके ज्यादा जो points of injury या उसमें के डैमेज के जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन किन जगहों पे उसको इंजरी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसमें हम हेमरेज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब हम इसमें ये हमारे पास अगर पेशेंट आती और इतना उसमें शी वाज नॉट इन दैट बैड शेप कि ऑलरेडी शी इज स्वेयरली एनीमिक एंड शी इज ब्लीडिंग हैवीली एट द मोमेंट और हमें इसकी जरा जल्दी सर्जरी प्लान करनी पड़ रही है, अदरवाइज वी कैन गिव हर 3 months कोर्स ऑफ GnRH analogs, not only to reduce the size of the fibroid but also to reduce its vascularity, वो भी एक मेजर है इसको कम करने की। But in this case especially where we have to resort to the surgery now, तो उसमें रोल ऑफ माइसोप्रोस्टॉल इज देयर कि आप सर्जरी से एक घंटा पहले उसको माइसोप्रोस्टॉल भी फोर्स्टेट दे दें सो दैट द यूट्रस इज केप्ट कॉन्ट्रैक्टेड, और जो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस में उसकी जो वेसल्स हैं, स्पाइरल आर्टेरियोल्स वगैरह, दैट गेट कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द क्रिस क्रॉस मैनर्स ऑफ द मायोमेट्रियम सेल फाइबर्स। इसके अलावा आप टॉर्निके की बात कर सकते हो, वेजोप्रेसिन का रोल अपनी जगह पे है, तो so all and using the coagulation cautery for giving incision and also using the coagulation cautery to coagulate the vessels that come in the way while you are enucleating that fibroid। तो जब आप उसको enucleate भी कर रहे होते हो तो साथ साथ उसकी वेसल्स को आप कॉटरी करते जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो अमाउंट ऑफ हेमरेज को कम कर देंगी। तो ये वो चीजें हैं जो खास तौर पे इन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट में डिस्कशन की और मैनेजमेंट की जरूरत इसमें है। नाउ वी कम टू द एक्चुअली बेसिकली सर्जिकल टेक्निक, उसमें उसका इंसिजन इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड है, लो इन द पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल, तो आप उसमें इंसिजन लॉन्गिट्यूडनल दोगे या ट्रांसवर्स दोगे? Ma'am, usually we give the incision longitudinally over the prominent part of the fibroid. बेसिकली ये थोड़ा सा डिसीजन इंट्राऑपरेटिवली और कंसल्टेंट बेस्ड भी होता है, लेकिन इसमें अगर आप एनाटमी के हिसाब से जाओ तो ट्रांसवर्स इंसिजन ज्यादा बेहतर समझा जाता है, बिकॉज द वेसल्स एंड द कैपिलरीज इन द मायोमेट्रियम रन इन द ट्रांसवर्स मैनर, तो दैट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल मिनिमाइज द ब्लड लॉस। तो ये ट्रांसवर्स अब, लेकिन बहरहाल ये इसमें डिसीजन जो है वो थोड़ा सा हो सकता है चेंज, क्योंकि फाइब्रोइड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वहाँ पे वर्टिकल देना ज्यादा सेफ है या उसमें ट्रांसवर्स दिया जा सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग ट्रांसवर्स इंसिजन ज्यादा फेवर किया जाता है, वेदर इट इज एंटीरियर और इट इज पोस्टीरियर। अब इसमें इसके बाद ये आता है कि आपने इसमें हाउ यू फील फॉर द अदर सीडलिंग्स, और उसमें एडहेजन प्रिवेंशन जो इसका सबसे मेजर वो होगा, प्रॉब्लम होगा पोस्ट ऑपरेटिवली, जिसके बारे में वी आर क्वाइट कंसर्न्ड
that this patient might not be getting any infertility tubal blockage later on as a result of this surgery, क्योंकि मायोमेक्टमी में एक बहुत बड़ा हैजर्ड ये होता है, खास तौर पे उस वक्त जब पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड हो, कि इसमें adhesions ना बन जाए, ट्यूबल ब्लॉकेज, सेकेंडरी ट्यूबल ब्लॉकेज ना हो जाए, इवन इफ द ट्यूब्स आर ओपन एट दिस टाइम, तो उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज सेकेंडरीली ना हो। तो उसके लिए एडहेजन प्रिवेंशन के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करोगे इन दिस केस? मैम इसमें पेशेंट की मैम फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग भी करेंगे कि एडहेजन्स बन सकती हैं, और मैम प्रिवेंशन के लिए वो तो प्राइमरीली आपने करनी ही करनी है। मेटिकुलस सर्जिकल टेक्निक और What is that meticulous surgical technique? You have to specify it. Simple rule बता दीजिए, 1 2 3 आप ये करेंगे। मैम डेड स्पेस को क्लोज करेंगे, गुड क्लोजर टेक्निक विद द हेमोस्टेसिस में। डेड स्पेस को ऑब्लिटरेट करने का ज्यादा मकसद उसकी पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज को रोकना होता है, और हेमोस्टेसिस सिक्योर करेंगे ये भी। और क्या करेंगे मैम? गुड हेमोस्टेसिस जो बात मुश्किल होता है मायोमेक्टमी के केसेस में, ठीक है। और क्या करेंगे मैम? एडहेजन्स मैम, क्योंकि पोस्टीरियर वॉल है तो एडहेजन्स के ये जो एडहेजन प्रिवेंशन है ना, हाँ जी मैम, यूट्रोसैक्रल एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं ताकि यूट्रस एंटीवर्टेड रहे और एडहेजन्स पीछे ना बने। यूट्रोसैक्रल एप्लीकेशन मैम इसमें नहीं, एप्लीकेशन कैसे होगी? व्हाट इज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट? जो यूट्रस से सेक्रम पे पीछे जाते हैं, ऐसे ही है ना? क्या वो एंटीवर्शन के लिए वो करते हैं? इज एंटीवर्शन डिपेंडेंट अपॉन यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स? तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को आपने नहीं छेड़ना इस केस में। बहुत बड़ा जो फाइब्रोइड होता है, अगर मैं मतलब इसकी 18 वीक साइज वाले को ही एज इट इज लूं, तो इसमें बेसिकली जो ज्यादा से ज्यादा आप करते हो राउंड लिगामेंट एप्लीकेशन, राउंड लिगामेंट्स उसको शॉर्टन कर देते हैं। तो क्योंकि राउंड लिगामेंट उसको इंटीरियरली पुल कर रहे होते हैं और वो एंटीवर्शन उससे मेंटेन रहती है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। Anyway, coming back to the adhesion prevention strategies. So, what else will be needed? Number 1, tissue, minimum tissue handling. क्योंकि देखो सर्जरी का एक बेसिक रूल ये होता है कि you have to respect the tissues. Minimum tissue dissection सिर्फ उतनी ही जितनी जरूरत है, और इसमें बहुत डेलिकेट तरीके से आपने करना होता है, मतलब उसमें हर टिश्यू को बहुत जेंटली हैंडल करते हुए। जितना ज्यादा टिश्यू ट्रॉमा होगा उतना ही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज्यादा इनिशिएट होगा, उतने ही सेप्सिस के चांसेस ज्यादा होंगे, उतना ही फाइब्रस टिश्यू ज्यादा बनेगा। जिस टिश्यू को आप सेपरेट करते जाओगे वहां पे फाइब्रोब्लास्ट ने आ जाना, वहीं पे फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू बन जाएगा और एडहेजन बन जाएंगी। सो मिनिमम टिश्यू हैंडलिंग विल बी द फर्स्ट रूल। सेकेंड, कीप इट इन्फेक्शन फ्री। एसेप्टिक टेक्निक को एट ऑल टाइम्स यू हैव टू कीप इन व्यू। फिर उसके बाद आपने बहुत जो है वो अच्छी हीमोस्टेसिस करनी है, जो बाज़ दफ़ा मुश्किल होती है इन केसेस ऑफ मायोमेक्टमी। आप कितनी भी अच्छी कर लें, लेकिन एनीवे बाद में कुछ ना कुछ इसका सीपेज चलता रहता है। फिर उसमें चौथी चीज़ ये होती है कि आपने जो सुचर्स यूज़ किए वो मिनिमम कैलिबर के सुचर्स हों। ज़्यादातर कैटगट वगैरह बहुत एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। दो कैटगट इज़ अ गुड सुचर और उसमें हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन अगर कैटगट आप यूज करें तो जहां पे बहुत ज्यादा टिश्यू स्ट्रेंथ की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, वहां पे मिनिमम कैलिबर के यूज करें। बहुत मोटे मोटे धागे इसमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, जैसे नंबर 2, नंबर 1 जो बल्कि 0 का भी स्टिच ठीक होता है, एडिक्वेटली आप उससे इसका डेड स्पेस भी ऑब्लिटरेट कर सकते हैं। बट एनीवे यू कैन यूज वाइक्रल 3-0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं फॉर द सुचरिंग ऑफ द यूट्रस और उसके डेड स्पेस को ऑब्लिटरेशन के लिए भी। तो टिश्यू जो सुचर टाइप है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा ये कि फिर उसमें जो मायोमीट्रियम का सिरोजा है वो आपने अप्रोप्रिएटली अप्रॉक्सीमेट किया हो, यानी एज टू एज अप्रॉक्सीमेट किया हो। एट नो पॉइंट्स द मायोमीट्रियम शुड
पाउट आउट। मायोमेट्रियम को अंदर से बाहर नजर नहीं आना चाहिए। इट शुड बी अप्रोक्सीमेटेड एज टू एज एंड सिरोजा टू सिरोजा, उसकी लाइनिंग को बिल्कुल अप्रोप्रिएटली आपने एड्रेस किया हो। और इसके अलावा आप उसमें जो एडहेजन प्रिवेंशन जो मटेरियल सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं यू कैन यूज दैट, जैसे सर्जी सेल्स वगैरह जो एक मैश की तरह से हैं, वो आप उस मायोमेक्टमी जो इंसिजन है उसके आप ऊपर बिल्कुल वो चिपक जाता है, तो सो दैट देयर इज नो मोर एक्सपोजर टू दैट रफ प्लेस, जिसकी वजह से उसमें एडहेजन बन जाए। और इसके अलावा ज्यादातर तो फेवर किया जाता है, अगर जैसे इस केस में मजबूरी है कि हमने पोस्टीरियर इंसिजन ही देना है, बट इफ फिजिबल गिव एन एंटीरियर इंसिजन। और एंटीरियर इंसिजन हमें कोशिश करना चाहिए कि लो इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट वाले एरिया में आप दें, ताकि जो ब्लैडर फ्लैप को आपने नीचे मूव किया हुआ है उसको फिर आप उसके ऊपर स्टिच कर दें, जैसे बाद दफा सिजेरियन के सेक्शन के केसेस में होता है। तो ये कुछ इसके बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आप इनमें यूज कर सकते हैं। और अब तो बहुत सारी एडहेजन प्रिवेंशन जेल्स वगैरह ये सब चीजें आ गई हैं जो आप उस इंसिजन लाइन पे पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें द एरिया इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट एडहेजन फॉर्मेशन, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो विद इन फर्स्ट 24 आवर्स कम इनटू एक्शन और उसके साथ फिर फाइब्रस टिश्यू का बनना शुरू हो जाता है। सो इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें विजिलेंट रहना पड़ता है। एंड समटाइम्स इवन अगर आप 100 सीसी नॉर्मल सेलाइन को भी उस एरिया पे डाल के छोड़ दें तो वो भी एक किस्म की प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी होती है, जिसमें एडहेजन प्रिवेंशन को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता है। नाउ कमिंग, यू हैव डन विद दिस प्रोसीजर, मायोमेक्टमी आपने कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो इसके बाद आपकी स्ट्रेटजी इस केस में क्या होगी? आपने पेशेंट का चूंकि मेन प्रॉब्लम था हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो उसमें आपने उसकी काउंसलिंग में उसको क्या बताया कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह ये फाइब्रॉइड है, तो क्या फाइब्रॉइड निकालने के बाद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी? आपने काउंसलिंग में कुछ ऐसा कवर किया था? जी मरियम, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए जब हम मायोमेक्टमी करते हैं तो व्हाट एंड अदर एडिशनल पॉइंट हैज टू बी कवर्ड इन दैट उसको काउंसलिंग किया था कि फाइब्रॉइड यूट्रस मैम, यस मैम, पेशेंट की काउंसलिंग में ये उसको बताना होता है कि दीस हाँ जी, काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं कि उसमें पेशेंट को आपने ये बताया कि फाइब्रॉइड निकलने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और यस मैम इट कुड बी बेटर, बट उसको पेशेंट को रिकरेंस ऑफ फाइब्राइड भी बताना है कि इट इज 50% इन द नेक्स्ट 5 ईयर, रिकरेंस ऑफ फाइब्राइड कैन आल्सो अकर। ठीक है, recurrence of fibroid, but what about the persistence of heavy menstrual bleeding? Can she have heavy menstrual bleeding again? Suppose there is no recurrence of fibroid, even then she can have this heavy menstrual bleeding. Whenever the patient is having fibroid uterus, there is always a component of myohyperplasia with that, and as well as she might be having some endometrial pathology with that, like endometrial hyperplasia in 5% of the cases. Yes. So in that case, जब मायो हाइपरप्लेजिया वाली चीज को तो आप एड्रेस नहीं कर रहे, आपने तो सिर्फ फाइब्रॉइड निकाल दिया, तो इसलिए इसमें हम कहेंगे कि 5% केसेस में ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग परसिस्ट कर सकती है, तो इसलिए हमने ये भी उसको बताना है। नाउ यू हैव डन विद द सर्जरी, सारा कुछ इसमें ठीक हो गया, रूटीन की पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपने कर दी। एज रिगार्ड टू फर्टिलिटी अब आप उसको और क्या बताएंगे? मैम फर्टिलिटी के पेशेंट का मैम एक तो मैम इंट्राऑपरेटिवली डाई टेस्ट करेंगे ट्यूबल पेटेंसी के लिए, अगर वो ठीक है सीमन एनालिसिस करवाएंगे, उसकी बॉडी बॉडी चेक करेंगे, सीमन एनालिसिस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। the patient that after the healing of the uterus and surgery 2 to 3 months ma'am she can try for the conception, and after she should how try much time? After how much time? almost 2 to 3 months. 2 to 3 months बहुत मिनिमम टाइम पीरियड है, क्योंकि यूजुअली अगर 6 मंथ का हम टाइम इंटरवल दें तो ज्यादा बेहतर होता है, बट द मिनिमम टाइम बिफोर हर अटेम्प्ट टू कंसीव शुड बी 3 months एट लीस्ट। 3 months का टाइम पीरियड कम से कम इस को हीलिंग को लगता है।
और ख़ास तौर पे अगर ये फाइब्रोइड इंट्राम्यूरल ऐसा है जिसमें यू हैव गॉन थ्रू होल ऑफ द थिकनेस ऑफ द मायोमीट्रियम, तो बेसिकली जो कैविटी ओपन करने ना करने की जो बात करते हैं उसमें डेप्थ ऑफ दैट इंसिजन ही ज़्यादा मैटर कर रही होती है, बिकॉज व्हेन द कैविटी इज ओपन, इसका ये मतलब है कि होल ऑफ द मायोमीट्रियम हैज़ बीन इंसाइज्ड और उसमें उस डेप्थ तक हमारी जो इंसिजन है वो गया, तो जस्ट लाइक अ क्लासिकल स्कार, तो उसमें उसकी हीलिंग में इतना टाइम चाहिए होता है। लेकिन अगर वो फर्ज किया उसमें कैविटी भी ओपन नहीं हुई और हमें उसकी लेस देन 50% ऑफ मायोमीट्रियम तक गए, देन पेशेंट कैन सेफली बी अलाउड टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 महीने के बाद जब ये इसको हम अलाउ करते हैं तो should she try to conceive spontaneously or there should be some कोई ovulation induction or some other ART techniques? मैम ओव्यूलेशन इंडक्शन देंगे पेशेंट को, बिकॉज ओव्यूलेशन इंडक्शन देंगे मैम 3 to 6 months इफ शी इज ओवुलेटिंग। क्यों देंगे ओव्यूलेशन इंडक्शन, क्यों देंगे? सारा कुछ ठीक है, अब तो फाइब्रॉइड भी निकल गया, क्यों देंगे? मैम बिकॉज कंसेप्शन के चांसेस इससे इंक्रीज हो जाएंगे आफ्टर सर्जरी, और मैम जल्दी ताकि कंसेप्शन हो जाए, क्योंकि मैम बाद में, क्योंकि अगर इफ द कंसेप्शन लेट शी डोंट कंसीव एंड देयर इज अ चांस ऑफ इसमें ओवुलेशन इंडक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड की इंडिकेशन ये होगी कि उसकी ऑलरेडी बहुत प्रोलॉन्ग्ड इनफर्टिलिटी है। अभी चाहे हमें ये नहीं पता इसकी, चाहे हम 6 महीने से ये सिम्टम्स दे रही है, बट द फाइब्रॉइड वुड बी देयर फॉर वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग टाइम पीरियड, and it could be affecting the chances of conception. Submucosal होता तो उसके symptoms पहले से आए होते, so probably it was intramural and then it by progression it was in submucosal location. तो इस वजह से उसमें फिर chances of spontaneous conception were already low because she was trying to conceive for last 11 years से लेके 3 years back जब उसकी abortion हुई, and then now for the last 3 years. तो इसलिए भी इसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन की जस्टिफिकेशन बन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि आपने उसको स्पॉन्टेनियसली उसने कंसीव, आपने उसको चांस देना है या नहीं देना है, या ओव्यूलेशन इंडक्शन करनी है, तो उसको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ओव्यूलेशन इंडक्शन हम इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों दे रहे हैं। तो इसमें हम इसके साथ एंड करते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम एक चीज पूछनी थी कि मैम अगर पेशेंट जो है उसकी 3 months के बाद हमने उसकी कंसेप्शन ट्राई करनी है दोबारा, तो मैम उसकी हम ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट या HSG दोबारा कराएंगे? अगर बेसलाइन उसका ठीक था एंड यू आर डेड श्योर दैट हीमोस्टेसिस एंड पेशेंट उसका जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड वाज टोटली अनइवेंटफुल, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, देन यू कैन गिव इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अदरवाइज चूंकि ये पोस्टीरियर फाइब्रॉइड था और चूंकि पोस्टीरियर इंसिजन के साथ एडिशन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, तो अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें तो यस, उसमें फिर हम दे सकते हैं और उसमें चेक कर सकते हैं इसकी हिस्टोसल्पिंगोग्राफी, ट्यूबल पेटेंसी को रीटेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड ऐसी है, फर्ज किया अगर ये इंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड होता और आपकी सारी चीजें इंट्राऑपरेटिवली बिल्कुल ठीक होती, अनइवेंटफुल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता, तो उस सूरत में आप बगैर टेस्ट करवाए हुए जा सकते थे। सो अगेन द थिंग्स हैव टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है मैम, आपने मैडम रोल का जो कहा जी बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम बेटा मुझे आवाज नहीं। हेलो जी जी मैम, अब आ रही है आवाज? बहुत गड़बड़ वाली आवाज आ रही है। हेलो मैडम, आपने एक और लेक्चर डिलीवर किया था इनफर्टिलिटी विद फाइब्रॉइड के साथ। हाँ जी, तो मैं कल ही वो सुन रही थी आपका यूट्यूब से। मैडम हाँ, उसमें पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड था 10 सेंटीमीटर का ना, हाँ, और सर्वाइकल फाइब्रॉइड भी था 3 to 4 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि उसमें तो एक और अच्छा, आपने कहा था कि 10 सेंटीमीटर का जो फाइब्रॉइड है पोस्टीरियर, वो हाँ, फिनिस्टियल इंसिजन से निकल जाएगा। किससे? तो एक फिनिस्टियल इंसिजन आप कह रहे थे ना? हाँ, तो उसमें निकल सकते हैं अगर 20 वीक से नीचे बल्कि बाद दफा 22 वीक्स तक की भी यूट्रस वो निकल सकता है। अब 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड आपको लगता है कि 10 सेंटीमीटर का इंसिजन, कैनन स्टील का मोमेंट इतना तो होता ही है, 6 सेंटीमीटर का मोमेंट होता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको वाइड कर सकते हैं, तो वो निकल सकता है। क्योंकि जब अब आपने फाइब्रॉइड की लोकेशन को, बाद दफा फाइब्रॉइड इतने मल्टीपल फाइब्रॉइड होते हैं यूट्रस के बीच में छुपी हुई होती है,
So, what are the landmarks to exactly identify the location of the fibroid? Are the round ligaments, fallopian tube, and ovaries. तो जहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर उसका डिसफिगर हुआ होता है, डिस्टॉर्ट हुई हुई होती है उसकी एनाटमी, वहाँ पे आप इन तीन एनाटॉमिकल लैंडमार्क से उसकी लोकेशन को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं। और अगर फर्ज किया ये बिल्कुल अलहदा से पड़ा हुआ है पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड, तो आप उसको माई मैचिंग स्क्रू लगाओ, उसको आराम से निकल आएगा वो बाहर। ऐसा मसला प्रैक्टिकली वैसे नहीं होता। लेकिन अगर बहुत लार्जर फाइब्रोइड्स हैं, लाइक मतलब ये 26-30 वीक्स तक का है, तो डेफिनेटली इट कैन नॉट कम आउट थ्रू द पेनिनसिल इंसिजन। ठीक है, ठीक है, तो मैडम हम अपना आवाज बस कट ऑफ, क्वालिटी काफी गड़बड़ हो गई है। मैडम हम अपना कट ऑफ बस 10, मतलब हम लोग तो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम हाँ, अपना कट ऑफ 10 8 to 10 सेंटीमीटर तक का सेंटीमीटर, रखें। बल्कि इसको यूं करो कि इसको 20 वीक साइज की फाइब्रोइड वो यूट्राइन साइज तक रखो कि 20 वीक तक की अगर यूट्रस साइज है तो उसमें आप उसको फेनोस्टील दो। ठीक है, और मैडम इसमें फिर 2 इंसिजन आते हैं ना, एक तो पोस्टीरियर फेनेस्ट्रियल इंसिजन आता था, उसको भी हम मैडम क्योंकि वो पोस्टीरियर वॉल पे है तो उसको फेनेस्ट्रियल कहेंगे या लो ट्रांसवर्स इंसिजन कहेंगे, और नहीं दूसरा बेटा, ये कि जो वो सर्वाइकल जो यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड के ऊपर का इंसिजन है वो तो फेनोस्टील वाली चीज नहीं ना कहलाएगी। फेनोस्टील जो है वो तो सिर्फ एक स्किन इंसिजन को हम कहते हैं, जो अंदर का है वो या ट्रांसवर्स है या वर्टिकल है, जी, तो हम उसको और लो इसके अलावा उसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है ट्रांसवर्स है, मैडम। वर्टिकल है, ऑब्लिक है, इस तरह से, या सेमी लिनियर है, इस तरह की चीजें से हम उसको डिफाइन करते हैं यूट्राइन इंसिजन्स को। और मैडम सर्वाइकल फाइब्रॉइड के लिए उसके क्या करते हैं फिर, उसके जो 4 सेंटीमीटर का सर्वाइकल फाइब्रॉइड तो उसमें तो वो लॉन्गिट्यूडनल उसी के साथ, अगर वो पोस्टीरियर ये है सभी तो अपना माइक उसकी म्यूट कर कोशिश दो। ये होती है कि एक इंसिजन दें और उसी में से जो दाएं बाएं दूसरे हैं वो निकाल लें। मतलब जो करीब करीब फाइब्रोइड्स होते हैं 2-4, उनको आप एक इंसिजन से निकालते हैं। फर्स्ट किया एक इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, तो उनके लिए तो अलहदा इंसिजन देना ही देना है। तो इस वजह से आप इसमें अगर सर्वाइकल है और पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड भी है तो पॉसिबली इट कैन कम आउट थ्रू सिंगल इंसिजन। आप इंसिजन को ऐसी जगह पे दें जिससे सर्वाइकल भी निकल आए और जिससे पोस्टीरियर वॉल भी निकल आए, मैडम जो कि उस थोड़ा केस सा में लो ना, होगा पोस्टीरियर वॉल में। मैडम उस केस में एक था पोस्टीरियर था और दूसरा जो सर्वाइकल फाइब्रॉइड था वो एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स पे था ना, तो हमें 2 देने ही अच्छा, वो पड़ने होते इंटीरियर हैं। लिप वाला तो बेटा फिर इंटीरियर आ गया ना, वो फिर इंटीरियर आ गया। मैडम एंटीरियर वाला वर्टिकल देंगे ना? एंटीरियर वॉल अगर दे, वो डिपेंड करता है उसके साइज पे। अमूमन मैंने बताया ना कि इसमें ट्रांसवर्स इंसिजन इज प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू द एनाटमी ऑफ द यूट्रस, लेकिन अगर हमें लगे तो हम इसको वर्टिकल भी दे सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं होता। और बेसिकली मैडम ये इंसिजन होता है कि उसने कौन सा इंसिजन देना है और कहाँ पे इंसिजन देना तो है। आप मैडम लोगों यही, को बेसिक प्रिंसिपल्स याद बस रहने चाहिए। ठीक है मैडम। ठीक है, और मैडम अगर यही फाइब्रॉइड जो है फलोपियन ट्यूब के आसपास कहीं होता तो हम इंसिजन कहाँ पर देते? जी जी, फिलोपियन ट्यूब के देखो, जो फिलोपियन ट्यूब के करीब हैं उसमें यही होता है कि हमने इनसे जो इंसिजन है वहां पे देना है जहां से फिलोपियन ट्यूब से हट के हम उसको निकाल सके, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब के करीब जाके डेड स्पेस का क्रिएट होना और वहां पे सुचरिंग लेना उसके इंट्राम्यूरल पार्ट को ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए हमारा अगर फिलोपियन ट्यूब के करीब करीब है तो भी वो एंटीरियर बट लो इन एंटीरियर यूट्राइन वॉल पे होगा, क्योंकि अगर हम बिल्कुल यूट्रस एक ग्लोबुलर सा यूट्रस है और उसको हम उसके लोअर पार्ट पे दे देते हैं तो उससे भी फाइब्रोइड निकल सकता है। अगरचे ज्यादा बेसिक चीज ये होती है कि आप फाइब्रोइड के जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट है उसके ऊपर इंसिजन दें, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा लो दे दें तो इन्यूक्लेशन उससे भी हो जाएगी, बिकॉज वी हैव टू सेव द फिलोपियन ट्यूब्स इन दिस केस, या जहां भी फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसके साथ हम एंड करते हैं। तो मैडम, हेलो हाँ जी, मैडम, आपने ना मीजोप्रोस्टोल का बताया था, किसका? मीजोप्रोस्टोल की डोजेज का बता दें और किस टाइम देनी है? 4 टेबलेट साइटोटैक की आप दे दें, चाहे विजाइनली दे दें, रेक्टली दे दें, उस 1 आवर बिफोर द सर्जरी। ठीक है, और मैडम डोजेज कितनी दें? 4 टेबलेट। ओके मैम, थैंक यू। मैडम ये क्वेश्चन था कि इस पेशेंट में हम जैसे एनीमिया करेक्शन के लिए हमने इसको डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, हम इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन
till symptomatic relief followed by iron supplementation भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट ये कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शायद इतना काम ना करे। लेकिन इसमें डिफरेंट ऑप्शन आप डिस्कस कर सकती हैं कि ये पेशेंट जो है इसको हमें पहले GnRH एनालॉग्स भी दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दें, हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज कर लें, एवरीथिंग कैन बी ट्राइड इन दिस केस। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि उसमें भी आपने पेशेंट्स को इंडिविजुअलाइज करना होता है कि किस पेशेंट पे आप ये कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते। वो इसलिए कि हर पेशेंट ऐसा नहीं होता कि जिसको आप इस तरह की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे फॉर 2 to 3 मंथ के लिए डाल दें। तो इस वजह से आपने कुछ पेशेंट्स को 1 स्टेप मैनेजमेंट ऑफर करनी होती है और कुछ को कंजर्वेटिव फॉलोड बाय सर्जरी करनी होती है। So that depends upon a lot of the profile parameters of the patient herself. तो ये इसीलिए इंडिविजुअलाइजेशन इसीलिए करवानी पड़ती है। और मैम वो GnRH एनालॉग की वो जो प्लेन ऑफ क्लेवेज लॉस हो जाएंगी तो वो डिफिकल्ट सर्जरी हो जाएगी। वो तो है, लेकिन अगर आप उसको 1-2 इंजेक्शन दे दोगे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। उसमें 2-3 चीजें होती हैं, प्लेन ऑफ क्लीवेज भी कम होता है और उसमें जो है वो थोड़ा सा फाइब्रोइड सॉफ्ट भी हो जाता है। तो कभी कभी हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन में इश्यू भी होता है। तो ये तो प्रोज एंड कॉन्स हर ट्रीटमेंट के होते हैं कि आप अभी करोगे तो ज्यादा ब्लड लॉस है, कम ब्लड लॉस के लिए फिर आप इसको इसकी तरफ ले जाओ। इसलिए इसके डॉप्लर फ्लो या अगर वेस्कुलरिटी अगर हमने देखी होती तो उस पर हम डिसाइड कर सकते थे। एक्सक्यूज मी मैडम हम हाइपोप्लेजिया के लिए एंडोमेट्रियल सैंपल करेंगे पहले। चलिए बेटा हम इसको यहाँ पे अमेंड करते हैं, ठीक है। हेलो मैडम, एक क्वेश्चन था मैडम, सैंपलिंग करेंगे हम इसको सर्जरी करने से पहले जी? एंडोमेट्रियल सैंपलिंग का कोई रोल है? नहीं, इसमें नहीं है क्योंकि पेशेंट इज यंग एज पेशेंट, इसमें यूट्राइन मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ये पेशेंट 40 ईयर्स से ऊपर होती तो और हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती यानी हमने मायोमेक्टमी करनी होती तो फिर हम जरूर करते। तो 40 ईयर्स से कम पेशेंट एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के लिए आपको बड़ी एक अच्छी जस्टिफिकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा मैडम क्वेश्चन ये था कि अगर हम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दें और इसका प्रोलॉन्ग करके इसको हम ब्लड लगाए IV आयरन वगैरह पे बिल्डअप कर दें, कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि चॉइस ऑफ द पेशेंट का सूटेबिलिटी क्राइटेरिया इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। तो इसलिए सूटेबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक ही आप डिसाइड करोगे, ठीक है। कोई पेशेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रह सकता है, नहीं रह सकता। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अमूमन लो प्रोफाइल के, लो कंप्लायंट और दूर से आए होते हैं, उन पे तो आप ये चीजें नहीं कर सकते। एक पढ़ा लिखा मरीज जो है जो लिविंग नियर बाय और वेल कंप्लायंट, उसमें ये आप कर सकते हो। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, दोनों तरीके से आप चला सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो तो ठीक है, वॉल फाइब्रोइड जो है बॉनी सूट का जिक्र करेंगे अगर हम पोस्टीरियर फाइब्रोइड रिमूव जी जी, अब बहुत सारे लोग इकट्ठे बोल रहे हैं। हाँ जी जी जी, एक्सक्यूज मी मैम, पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड है वो नॉर्मली हम पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड, पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड। हाँ जी, तो अगर उसको हम पहले तो ट्राई करते हैं टू रिमूव इट फ्रॉम द इंटीरियर यूट्राइन इंसिजन, लेकिन वो पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड के लिए देखो जो ट्रांस कैविटी जाना होता है ना, वो इतना बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होती। तो इसलिए उसको पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड के लिए पोस्टीरियर इंसिजन ही दो, ठीक है। यानी हम भी एग्जाम में कहें क्योंकि वो पोस्टीरियर अगर हमें जाना है इंटरकैविटरी तो बेटर टू गिव द पोस्टीरियर इंसिजन। हाँ जी बिल्कुल, पूरी कैविटी को काट के जाना जो है ना वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज मैम। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप पढ़ाती हैं। आपके मैम, YouTube बहुत के भी अच्छा। मैडम मैंने सारे लेक्चर्स सुने हैं और ब्लेसिंग है आप हमारे लिए। चलो, जज़ाकल्लाह। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।